Hello and welcome back to my channel, guys. So today is our fourth lecture for law revision, that is for CA final, CMA final and CS professional. Our today's topic would be dividend. Now, what is dividend? Dividend is basically a distribution of a portion of the company's earnings decided and managed by the company's board of directors and paid to a क्लास ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो कुछ ही क्लास को अपन पे करते हैं. डिविडेंड्स आर पेमेंट्स मेड बाय पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज एज अ रिवॉर्ड टू इन्वेस्टर्स फॉर पुटिंग देयर मनी इनटू द वेंचर एंड द अनाउंसमेंट्स फॉर डिविडेंड पे आउट्स आर जनरली अकम्पनीड बाय अ प्रपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज इन अ कंपनीज स्टॉक प्राइस. द डिविडेंड कुड बी इंटरिम और फाइनल. नाउ लेट अस go through what are the rules, what are the compliances for interim and final dividends, okay, given by the publicly listed companies. Start without wasting any time. We have to begin by section 2 subsection 35. okay, section 2 subsection 35 हमें क्या बोलता है? that definition of dividend includes interim and final dividend. okay, so ये कहाँ पे लिखा है interim and final dividend? section 2 subsection 35. now first let us know about interim dividend. For interim dividend, board of directors एक टेबल में बैठेंगे. the board of directors would part a board resolution declaring the interim dividend. ठीक है, तो board resolution यहाँ पे पास होगा. यहाँ पे क्या पास होगा? interim के लिए क्या पास होगा? board resolution. okay, now when we come to final dividend में सबसे पहले board of directors प्रपोज करेंगे. ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करेंगे. लाइक अगर मैं बोलता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है कि हमको 10 रुपये का डिविडेंड देना है, पर हो सकता है कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो लोग आउट ऑफ 10 ओनली 8 रुपीज़ से डिक्लेयर करें. ठीक है, सो इट वुड बी अप्रूव्ड इन AGM. तो यहाँ पे जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो ये है कि जो फाइनल डिविडेंड होता है वो AGM में डिक्लेयर होता है, और जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो बोर्ड रेजोल्यूशन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अप्रूव हो जाता है. ठीक है, सो हियर इज द एंड ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 35. आवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 123, दैट इज सोर्सेस ऑफ फंड. कि कंपनी पैसे कहाँ से लाएगी डिविडेंड बांटने के लिए? फ्रॉम वेयर डज द कंपनी वुड अरेंज फॉर फंड्स टू डिक्लेयर डिविडेंड. ठीक है, सो डिविडेंड कुड बी सो फॉर दिस सेक्शन 123 टेल्स अस अबाउट डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स, accumulated profits, money given by central government, state government if payment of dividend is guaranteed by central government or state government. What does that mean is कि हम लोग डिविडेंड जो है we can only declare dividend out of our current year profits or our accumulated profits. Now what does accumulated profit means? Accumulated profit means the money retained by the company over the number of years. See क्या होता है that if say in 2018 I have earned ₹50, I will save 40 rupees and declare 10 rupees as dividend. ठीक है, सो आई हैव सेव्ड 40 रुपीज़. लाइकवाइज इन 2019 आई हैव सेव्ड 30 रुपीज़. नाउ लाइकवाइज इन 2020, नाउ 40 + 30 70 accumulated profit. फॉर 2020 I can declare dividend from those 70 rupees. ठीक है, accumulated profit means the profit that have been saved from number of years. ठीक है, हमने पास्ट में कुछ जो पैसे बचाए हैं उसमें से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं. Now the third condition is sometimes what happens is our central government or state government gives a specific amount to the corporates to give that as dividend to their shareholders. ठीक है, तो that we can declare dividend from that money also. Now the one of the most important condition is no matter from where we are declaring dividend, central that current year profits, accumulated profits, wherever, we have to declare dividend after setting off our depreciation and all the losses. ठीक है, if you have not set off your losses or depreciation you cannot declare dividend. So first set off your depreciation, your losses, then you can declare dividend. ठीक है, okay, so moving forward, now when we declare dividend we have to transfer certain amount of funds into certain reserves. ठीक है, तो हम ऐसे ही डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते. वी हैव टू कंप्लाई विद सर्टन प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. सो वन ऑफ द प्रोविजन इज दिस. सी व्हेनेवर यू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ accumulated profits, declaration out of accumulated profit in case of inadequacy or absence of profits. ठीक है,
कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ठीक है। इफ कंपनी डजंट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स और inadequate fund, so what company does, what we will do, we will declare dividends out of profits transfer to reserves, ठीक है। हमने जो भी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा ना, हम उसमें से डिक्लेयर कर देते हैं डिविडेंड, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच वी हैव टू कंप्लाई विद। ओके, नाउ व्हाट आर दोस कंडीशंस, लेट अस सी। First condition is rate of dividend should be less than equals to average rate of dividend of last 3 financial years. We have to calculate average rate of dividend of last 3 financial year, और हमारे जो rate of dividend है जो हम अभी we are giving to the shareholders, it should be less than or equal to that, ठीक है। अगर समझो मेरा लास्ट 3 इयर्स का एवरेज जो है वो आ रहा है 10%, सो आई कैन डिक्लेयर डिविडेंड फॉर लेस देन इक्वल्स टू 10%, ठीक है। इससे कम में ही मुझे डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना ये है that above sub rule would not apply to a company who has not declared dividend in each of the last 3 years, ठीक है। If you have not declared dividend in any of the last 3 years, then this sub rule won't apply to you, ठीक है। तो यहाँ पे जो important point है वो है each of the last 3 years को आपको point याद रखना है, ठीक है। If you have not declared dividend in each of the last 3 years, then this sub rule won't apply to you. Second point is amount withdrawn from reserve should be less than equals to 10% of paid up share capital and free reserves, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ठीक है। आपको करंट ईयर के सारे लॉसेस सेट ऑफ करने हैं, ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, ठीक है। सो एंड द लास्ट कंडीशन इज बैलेंस ऑफ रिजर्व शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। देखो आफ्टर डिक्लेयरिंग डिविडेंड जो आपका रिजर्व्स में बैलेंस है दैट शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 15%। सी इफ that balance is not more than or equals to 15% of the paid up share capital, then you cannot declare dividend. So before declaring dividend you have to make all these calculations. So in examinations there might be questions in which you have to calculate all these things, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को कंडीशन क्या याद रखनी है, दैट अपन को लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। आपको वो अमाउंट देखना है, उस अमाउंट तक आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। उससे उस पर्सन से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज आप पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10%, ठीक है। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ द POSC प्लस फ्री रिजर्व्स, उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन ये है कि बैलेंस ऑफ रिजर्व शुड बी मोर देन इक्वल टू 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कि जो मेरा रिजर्व्स का बैलेंस है आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड वो मेरे पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। सो दीज वर द 3 conditions which you have to take in mind before declaring dividend, okay। And for the compliance procedures, our next topic is, ठीक है, हमने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया, उसके बाद क्या, ओके। आफ्टर डिक्लेयरिंग डिविडेंड यू हैव टू डिपॉजिट डिविडेंड, ठीक है। अब कहाँ डिपॉजिट करेंगे सर, बेटा डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड डिपॉजिट इन अ शेड्यूल बैंक इन सेपरेट अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जैसे ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके 5 दिन के अंदर एक शेड्यूल बैंक इन सेपरेट अकाउंट विद इन 5 days, आपको 5 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक के एक सेपरेट अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला जो डिविडेंड है इसका सेपरेट अकाउंट बनाना है और उसमें ये डिपॉजिट करना है, ठीक है। अब व्हाट वुड बी दी मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अब जो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उसका आप किन वेज से आप इसको दे सकते हो, मतलब अपने शेयर होल्डर्स तक पहुंचा सकते हो। सो इट कुड बी कैश, it could be by check, it could be dividend warrant, it could be electronic mode only to registered shareholder or his order or banks। क्या होता है कि आप कैश में दे सकते हो, आप चेक में दे सकते हो, और आप डिविडेंड वारंट्स इशू कर सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में मीन्स बाय NEFT और RTGS ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर अगर शेयर होल्डर ने खुद ही बोला है कि यार तुम क्या सर आप मेरे हिस्से का जो डिविडेंड है आप इसको दे दो, ठीक है। तो आप शेयर होल्डर के ऑर्डर पे आप किसी और को ये डिविडेंड दे सकते हो, ओके, गेटिंग इट। नाउ
प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, क्या कभी हमें डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कुछ प्रोहिबिशंस हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ लिमिटेशंस हो सकती है? हाँ, देखो, यू हैव टू फॉलो दिस गाइज, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन सेक्शन 123. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर सेक्शन 123, प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. ठीक है, क्या बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड क्या कुछ लिमिटेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है? Yes, we have to comply with certain provisions of the Companies Act 2013, which prescribes certain prohibitions for before declaration of dividend. See, if company doesn't comply with the provisions of section 73 and 74, that company cannot declare dividend as long as the failure continues. Guys, section 73 and 74 relates to public deposits. ठीक है, कुछ companies public deposits भी लेती हैं. अगर आपने section 73 and section 74 नहीं पढ़ा है तो मैं recommend करूंगा आप एक बार उसको पूरा पढ़ लीजिए. Okay, so it is as an interlevel. So यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है that if a company has not complied with section 73 and section 74 of the Companies Act 2013, then they cannot declare dividend as long as the failure continues. जब तक वो failure continue हो रहा है, जब तक आपने वो failure को सही नहीं किया, you cannot declare dividend. Okay, these two parts would not be applicable to government company and any such subsidiary of government company. Now, which two parts? जो ऊपर के अपने दो parts थे ना, 73, 74, these two points would not be applicable to government company and any such subsidiary of government. तो government company और subsidiary companies of government company पे applicable नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ तक अपना हो गया. Now our section 123 is completed. Now we are moving ahead with section 124. What does section 124 say? Section 124 is about unpaid dividend account. Now what is unpaid dividend account? See, हमने dividend declare तो किया है, ठीक है. After declaration of dividend, within 5 days we have to transfer it to our separate bank account. वो सब तो अपनी जगह हो गई, ठीक है. But after declaration we have to pay that dividend within 30 days. ठीक है, हमको 5 days में separate account में ट्रांसफर मारना है, ठीक है. But after declaration within 30 days we have to give that dividend to the shareholder, to the respective shareholder. ठीक है, अब ये point उस regarding है. So come let's understand. Dividend declared would be paid within 30 days. ठीक है. Now within 7 days transfer to unpaid dividend account which is unclaimed. अगर if you have not paid within 30 days to the respective shareholders, then 31st day जो होगा ना, जो भी फर्स्ट डे होगा ना आफ्टर 30 डेज, 7 दिन के अंदर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट विच इज अनक्लेम उधर ट्रांसफर मानना है. सपोज करो आपने 1 जुलाई को डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है. 30 डेज कब खत्म होते हैं? 30th जुलाई को खत्म हो जाते हैं 30 डेज, ठीक है. के 7 डेज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. सो इट वुड बी टिल 6 अगस्त. तो 6 अगस्त के पहले you have to transfer these funds to a separate account, that is unpaid dividend account, before 6 August. ठीक है, तो अब समझ में आ गई ये चीज. Now default in transfer, if you have not transferred within 7 days, then you have to pay interest at the rate 12% per annum. ठीक है, उसके बाद से आपको डिविडेंड तो क्रेडिट करना ही है उस अकाउंट में, प्लस आप 12% पर एनम के रेट से उस पर्टिकुलर अमाउंट पे इंटरेस्ट भी क्रेडिट करते जाओगे, ठीक है, 12% पर एनम के रेट पे. नेक्स्ट इज मनी अनक्लेम फॉर 7 years इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट वुड बी ट्रांसफर टू IPF. ठीक है, अब जो मनी आपने 7 दिन के अंदर ट्रांसफर किया है ना डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, इफ दैट मनी इज रिमेन्स अनक्लेम फॉर द नेक्स्ट 7 years, देन यू हैव टू ट्रांसफर इट टू द IPF. PF इज एन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट. अभी हम आगे ये चीज़ पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है. तो अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर ये 7 साल तक अनक्लेम रहता है तो हमें इसे IPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है, आफ्टर 7 years. ठीक है. सो इफ यू हैव नॉट ट्रांसफर्ड इट, देन नाउ अब ये सेक्शन 124 में पूरी पेनाल्टीज है. पेनाल्टी वुड बी फॉर कंपनी मिनिमम 5 लाख टू मैक्सिमम 25 लाख, फॉर ऑफिसर मिनिमम 1 लाख टू मैक्सिमम 5 लाख. ठीक है, ये पेनाल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ विदिन 90 days of making transfer of amount to unpaid dividend account, prepare a statement detail. ठीक है,
जैसे ही आपने अनपेड अकाउंट में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, प्रिपेयर स्टेटमेंट कि विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर ये स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करनी है। प्रिपेयर स्टेटमेंट डिटेल्स, हर चीज़ की डिटेल्स की, किसका अकाउंट है, कैसा अकाउंट है, आपको वो सब चीज़ें बतानी है, ठीक है। अच्छा, अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा सेक्शन 123, सेक्शन 124 थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होगा, एक बार अपन उसको एक समरी टाइप में रिवाइंड करते हैं, ठीक है। सी, कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड, कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड विद इन 30 डेज, पे करो या क्लेम करो, ठीक है। या तो आप पे कर दो उसको या क्लेम हो जाएगा वो, ठीक है। आप खुद पे करोगे या आप शेयर होल्डर क्लेम करेगा। नाउ अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो कंपनी उसको कहाँ डालेगी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कहाँ डालेगी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। नाउ अनपेड डिविडेंड अकाउंट, मनी प्लस शेयर्स। अब किसी ने उसको क्लेम ही नहीं किया तो अब क्या, तो शेयर्स भी और पैसे भी, ठीक है। हो सकता है कि वो शेयर होल्डर की डेथ हो गई हो, ठीक है। तो अब क्या, तो अब वो शेयर्स प्लस मनी आप आईईपीएफ में डाल दोगे। जो आईईपीएफ अकाउंट है ना, वो रेगुलेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी, ठीक है। जब आप सेबी लॉ पढ़ोगे तो अब वहाँ पे आपने पढ़ा होगा आईपीएफ के बारे में। ये जो अकाउंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी रेगुलेट करता है। So our next section is section 125, that is IEPF, Investor Education and Protection Fund. It is very important section as I have told you earlier. So but there is nothing great in this section. Okay, section 125 IEPF is established by central government, which I have already told you. Okay, so what are the sources of funds in IEPF? कहाँ से पैसा आएगा इन अकाउंट्स में, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट पॉइंट, फॉर लर्निंग दिस यू हैव टू, आई हैव मेड अ निमोनिक, दैट इज दादी इज ग्रेट। ओके, दादी इज ग्रेट। सो दादी इज ग्रेट को अगर आप याद रखोगे, आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेगा एग्जाम में भी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता है, इसलिए निमोनिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दादी इज ग्रेट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, अनपेड डिपॉजिट्स। जितने भी अनपेड डिपॉजिट्स होंगे, as I have told you earlier that members and shareholders make deposits into the corporates and in return they receive interest on that. So there would be unpaid deposits, ठीक है। मैंने डिपॉजिट किया, मैं भूल गया कि मैंने इस कंपनी में डिपॉजिट किया, और एल्स आई एम नो मोर and there is no one to receive those deposits. So likewise it would be there. Okay, so unpaid deposits रहेंगे, ठीक है। उसके बाद outstanding application of money, ठीक है। Outstanding application money means when a shareholder applies for shares, which I have already told you, ठीक है। तो अगर कुछ outstanding रह जाते हैं application money का, तो वो भी आप IPF में आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है। That this application money you have studied, you must have studied in your CMA intern. These are the beginning part of corporate law. So I'm not going into much detail because it is not as important for final level, okay, but this section is important, okay. So unpaid dividends, unpaid debentures, all these things are to be deposited into the IPF account, ठीक है। अब इन चीज़ों पे जो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा ना, इंटरेस्ट ऑन अबव, ठीक है, all these 4 things, जो इंटरेस्ट रहेगा ना, वो भी IPF अकाउंट में जाएगा। Next is interest on investments made out of the funds. Now what does IPF, what does government do? They may invest this money into some secured deposits, ठीक है। So they would generate income from that also, और ये अगर अकाउंट में भी पड़ा रहा, then there also they would be generating an income. So where does that income go? Yes, that income would also be deposited in this account, ठीक है, that is IPF account, ठीक है। So this interest in investment made out of these funds would be going to IPF account. Grants, donation from central government, state government, companies, financial institutions, क्या होता है, IPF has many uses, okay, which we would be studying after this, that where these funds are used. So for using those funds, because ये देखो deposits हो गया, शेयर होल्डर का पैसा हो गया, डिविडेंड का हो गया, ये तो आपको एक ना एक दिन देना भी है, ठीक है। You don't know whether this money is yours or not. So what does the government do? Government reasonably allocates a certain amount of money in every year in the financial budget to this IPF account, and from this account it is used for various purposes, which we will be seeing in the upcoming para, ठीक है। सो अब इसको अपन को याद कैसे करना है, हाँ जी,
इसको याद कैसे करना है, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। दादी इज ग्रेट, डी फॉर अनपेड डिपॉजिट्स, ए फॉर एप्लीकेशन मनी, डी फॉर अनपेड डिविडेंड्स, अनपेड डिबेंचर्स डी, आई फॉर इंटरेस्ट, इज इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, ग्रेट, ठीक है, दादी इज ग्रेट। इसको याद करना, सेक्शन 125 आईपीएफ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सोर्सेस ऑफ आईपीएफ। इसके बाद अपन आते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीएफ, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। कहाँ पीएफ का जो पैसा है वो कहाँ पे यूटिलाइज होगा, बोलो भाई। चलो अभी देखते हैं, रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, एप्लीकेशन मनी। तो क्या हो सकता है कि कहीं पे हमने इन्वेस्टमेंट किया हो तो हमारे आगे वाली जनरेशंस को पता पड़ा तो वो लोग चले जाएंगे कि भैया हमारे पैसे हैं यहाँ पे, हमको दे दीजिए, हमारे डिविडेंड है, हमारा अनपेड, हमारे डिपॉजिट्स कुछ मैच्योर हो गए, हमको वो चाहिए, हमारे एप्लीकेशन मनी है, हमको वो चाहिए, ठीक है। तो हम वो पैसे वापस लेने के लिए चले जाएंगे, ठीक है, या मेरी याददाश्त वापस आ गई, ठीक है, तो मैं वो पैसे लेने वापस चले जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा आईपीएफ के पास, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब जो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज में, सिक्योरिटी ट्रेड में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है। तो उन फ्रॉड्स के लिए हम लोग इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, आईपीएफ से निकालेंगे अपन पैसा, ठीक है। जो मैंने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसे डालती है इस अकाउंट में, तो इन्हीं पर्पसेस के लिए वो भी डालती है, ठीक है, क्यों, हमको इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना है। तो उस पर्पस के लिए प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्चार्ज अमाउंट, कोई अमाउंट अगर डिस्चार्ज है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, यहीं से होगा, ठीक है। उसके बाद कोई अगर रीइंबर्समेंट करनी है लीगल एक्सपेंसेस की, किसी शेयर होल्डर का लीगल एक्सपेंसेस अगर हमको उसको रीइंबर्समेंट करना है तो कहाँ से करेंगे, अपन इसी अकाउंट से करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। सेक्शन 126 अपना नेक्स्ट सेक्शन होगा, सेक्शन 126। सेक्शन 125 में कुछ भी नहीं था, आईपीएफ के बारे में था कि वो कैसे फॉर्म होता है, वहाँ पे कौन कौन से सोर्सेज से पैसे आते हैं, पैसे कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, अपन को ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 126, सेक्शन 126 इज राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर्स इन अबेंस। तो बच्चों अबेंस का मतलब क्या होता है, अबेंस का मतलब ये होता है कि टू होल्ड, ठीक है। जैसे समझो मोदी जी और मैं, मेरे पास रिलायंस के शेयर है, मैंने अपने शेयर्स मोदी जी को दे दिए, ठीक है। हम दोनों में आपस में बात तो हो गई, पर हमने ये शेयर का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया रिलायंस में। रिलायंस में अभी भी ये शेयर मेरे नाम पे। अब रिलायंस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट रिलायंस वुड होल्ड द डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स, ठीक है। रिलायंस वोंट गिव दिस डिविडेंड टू नीदर मी टू नीदर मोदी जी, but if I tell Reliance to please you can give the dividend to the Modi ji, then Reliance will give, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है वो, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स केप्ट इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर डिविडेंड, instrument of transfer dividend but not registered, transfer dividend to unpaid dividend account unless authorized by registered holder in writing to transfer the amount of transferee, ठीक है। if I have told Reliance in writing that you can give dividend, you can give anything to the Modi ji, तो चलेगा। पर अगर मैंने नहीं बोला तो यू कैन नॉट गिव टू मोदी जी, रिलायंस कुछ मोदी जी को नहीं दे सकता, ठीक है। कैप्टन अबेंस इन रिलेशन टू सच शेयर्स, बेटा राइट शेयर बोनस शेयर के लिए भी यही चीज़ रहेगी कि अनलेस एंड अनटिल ट्रांसफर नहीं बोल देता कि यू कैन गिफ्ट इट टू द ट्रांसफरी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो अबेंस का मतलब यही होता है। सेक्शन 126 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। सेक्शन 127 इज टाइम लिमिट फॉर डिविडेंड, ठीक है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर करते हो आपको 30 डेज के अंदर पे करना है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। पे विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। अगर आपने 30 डेज के अंदर पे नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था 18% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना है। विद इन 5 डेज अकाउंट में डिपॉजिट करना है, विद इन 30 डेज आपको शेयर होल्डर को देना है। और अगर नहीं दिया तो क्या पेनाल्टी, कितनी पेनाल्टी, सिंपल इंटरेस्ट 18% पर एनम, तो ये तो देना, ये पेनाल्टी डायरेक्टर को 1000 रुपीज पर डे प्लस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्सिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स वुड बी लायबल फॉर रुपीज 1000 पर डे एंड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। बच्चों डिविडेंड डिक्लेयर करके उसको शेयर होल्डर को न देना बहुत बड़ी सज़ा है, बहुत बड़ा कानूनन अपराध है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पेनाल्टीज दी हुई है, ठीक है। बट अगर कंपनी की कोई गलती नहीं है तो आपको पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। चलो ये कौन सी कंडीशंस है, ये एक्सेप्शंस है, कंडीशंस ही एक्सेप्शंस है। कैसे याद करना है, DDLJ कैसे याद करना है, DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, देना तो आखिर तुझे जून अटेम्प्ट ही पड़ेगा, कोई पोस्टपोन नहीं होंगे एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो DDLJ
नॉन पेमेंट नॉट ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से नॉन पेमेंट नहीं हुई दादा, कंपनी की गलती कुछ नहीं थी, मैंने तो पैसा देना चाहा, मेरे पास शेयर होल्डर की एड्रेस थी, शेयर होल्डर वहाँ से चला गया, आई डोंट हैव एनी फोन नंबर एंड आई डोंट हैव एनी कम्युनिकेशन डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर, और दोज कम्युनिकेशन डिटेल्स विच आई हैव ऑफ शेयर होल्डर आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, सो आई हैव टू प्रूव दैट आई ट्राइड टू रीच टू द शेयर होल्डर बट शेयर होल्डर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी, सो इट्स नॉट माई मिस्टेक. Second, directions given by shareholder could not be complied and same has been communicated to the shareholder. Directions given by shareholder, ठीक है. Say I live in India. Okay, I told Reliance Industries, sir आप मेरा डिविडेंड आप जो है मेरी मॉम को दे दीजिए, और वो लंदन में रहती हैं. रिलायंस बोलेगा भाई साहब हम इंडिया में ही दे सकते हैं, हम लंदन वंडन नहीं देंगे, ठीक है. मैंने बोला, मैंने रिप्लाई नहीं किया. कंपनी बोलेगी, कंपनी क्या बोलेगी, शेयर होल्डर ने हमको बोला था ये करने को, हमने शेयर होल्डर को बता दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, अब आगे शेयर होल्डर ने पैसे रिसीव नहीं किए तो उसकी गलती, ठीक है. तो वही बोलता, डायरेक्शंस गिवन बाय शेयर होल्डर कुड नॉट बी कंप्लाइड एंड सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर. बैक कम्युनिकेशन टू द शेयर होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने कम्युनिकेट नहीं किया ना फिर कंपनी की गलती आ जाएगी, ठीक है. ऑपरेशन ऑफ लॉ, यू ऑल नो दैट, डिस्प्यूट टू रिसीव डिविडेंड, अमाउंट लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी ड्यू बाय द शेयर होल्डर, ठीक है. अगर कोई डिस्प्यूट था शेयर होल्डर्स के अगेन, ठीक है, हो सकता था कि शेयर होल्डर कंपनी का कोई थर्ड पार्टी भी होता, ठीक है. मैं कंपनी के लिए हो सकता है कुछ काम भी कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी चीज़ के रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और अगर मेरी तरफ से कोई डिफॉल्ट हुआ हो तो कंपनी को राइट है, मेरा जो कंपनी को जो मुझे इनकम देनी है और मुझे जो कंपनी को देना है उसको सेट ऑफ करने का, ठीक है. तो वही चीज़ है मेरे हिसाब से. आई डोंट ट्रीट दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बट यू शुड लर्न इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, बट दीज थिंग्स आर लर्न में याद करने में बहुत ईजी है, क्योंकि अगर कंपनी की गलती है पेनल्टी देनी पड़ेगी, कंपनी की गलती नहीं है तो पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है. इसको थोड़ा लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचना है बहुत इजी लगेगा. DDLJ 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 DDLJ, ठीक है. उसके बाद अच्छा DDLJ का फुल फॉर्म नहीं बताया ना मैंने. D मतलब सॉरी, D मतलब डिफॉल्ट, D मतलब डायरेक्टर्स, L मतलब लॉ, J मतलब झगड़ा, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को क्या बोलते हैं हिंदी में, झगड़ा, ठीक है. तो DDLJ, ठीक है, हो गया, कूल. रिवोकेशन, रिवोकेशन क्या होता है, रिवोकेशन बोले तो स्टेप ले लिया आगे, उसको पीछे नहीं ले सकते, अगर पीछे लोगे तो आउट हो जाओगे. देखो भाई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, अगर उसने क्रीज छोड़ी और पीछे अगर धोनी विकेट कीपर है तो आपका आउट होना पक्का है. तो एक बार आप क्रीज के बाहर निकल गए, आप वापस क्रीज के अंदर नहीं आ सकते. अगर धोनी पीछे खड़ा है तो यहाँ पे कौन पीछे खड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. अगर कंपनी ने एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना, आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, आप वापस उसको नहीं ले सकते. यू हैव टू गिव टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है. सो नाउ देयर आर टू एक्सेप्शंस टू इट, अल्ट्रावाइज एंड गोइंग कंसर्न. अभी के लिए याद कर लो, बाद में मैं आपको समझाऊंगा, इस पे टॉपिक आएंगे. गोइंग कंसर्न और अल्ट्रावाइज है तो ये एक्सेप्शन है, बाकी आप अपने डिक्लेयर डिविडेंड को आप रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड कुड बी डिक्लेयर आउट ऑफ सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, सॉरी फाइनेंशियल ईयर. अगर कंपनी लॉसेस में, अगर कंपनी के सरप्लस में है तो कंपनी ऐसे डिक्लेयर कर देगी. अगर कंपनी लॉसेस में फिर भी अगर उसको इंटरिम डिविडेंड देना है तो कैसे देंगी कंपनी, इफ कंपनी इज इन लॉसेस देन करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, देन द रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज लेस देन एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर. को समझ में आया नहीं आया, मैं समझाता हूँ ना. देख भाई, इंटरिम डिविडेंड कब देते हैं, साल के बीच में. सपोज कर मैंने 15 नवंबर को इंटरिम डिविडेंड दिया, ठीक है, दिवाली का टाइम था, इंटरिम डिविडेंड आई हैव डिक्लेयर्ड. नाउ व्हाट आई हैव टू सी इज इफ आई एम बीइंग इनटू लॉसेस अप टू प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है. कंपनीज यूजुअली क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस करती है. तो अगर मैंने 15 नवंबर को अगर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, वर्ड याद रखना है इंटरिम. और इसके पहले का क्वार्टर कौन सा होता है, सितंबर, 30 सितंबर है ना. अगर 30 सितंबर तक अगर मैं लॉसेस में चल रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा,
तो मैं क्या करूंगा, मैं पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकालूंगा और मैं उससे ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार कंपनीज क्या होती है साल के बीच में लॉसेस में चलती है, बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम लोग प्रॉफिट्स में मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी सेल्स इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप डिविडेंड तो डिक्लेयर कर सकते हो इंटरिम, बट अगर आप लॉस में चल रहे हो अपने लास्ट क्वार्टर तक, तो आपको पिछले 3 साल का आपका एवरेज डिविडेंड का रेट निकालना है और उससे ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है amount of dividend would be deposited in a scheduled bank account within 5 days of declaration, pay within 30 days as penalty or plus exemption। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। With this we conclude. Now let's have a revision of certain sections. Section 2 subsection 35 dividend includes interim dividend, 123 sources of dividend, 124 in unpaid dividend account, 125 IPA, 126 abeyance, 127 time limit। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल लेवल पे डिविडेंड कोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यू शुड लर्न ऑल दी सेक्शंस रेगुलरली, ठीक है। इन सेक्शंस को लर्न करने का एक तरीका है दुसाई दुसाई तुझे तेरी दुसाई करूंगा मैं। तो दुसाई का मतलब क्या होता है, डी फॉर डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, एस फॉर सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, यू फॉर अनपेड डिविडेंड, आई फॉर आईपीएफ, ए फॉर अबेयंस एंड टी फॉर टाइम लिमिट। ठीक है, हो गया आपका। तो इसके साथ अपन क्लोज करते हैं डिविडेंड को। दिस डिविडेंड इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉ एंड ऑडिट बोथ। ठीक है, दोनों में आता है ये। सो गाइज प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज शेयर विद दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज इस बार जून अटेम्प्ट है तो सबके एग्जाम्स लाइन से ही हैं। फ्रॉम 11 to 17 इट्स फॉर CMA एंड फ्रॉम 18 ऑनवर्ड्स इट्स फॉर CA। तो सबको पास होना है, सबके लिए अब की बार जून पार। सो हमें इस बार अच्छे से जून अटेम्प्ट निकालना है। सो ऑल द बेस्ट एंड डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल द ग्रुप्स in which you are there. Stay strong, stay fit and study hard. Thank you.